Dear kids, now let us do the book exercise of chapter 3rd from reader book, that is in the park. This is the exercise. Okay? Look at the picture of the elephant. This is the picture of an elephant and complete the sentences. These are the hints or the clues. ये आपको help box given है बेटा. Okay. So these are the trunk. This is first one is trunk. This is called the trunks. Okay. Second is bananas, kele. Big. Elephant is big na. This all verbs describes elephant. ये elephant को describe कर रहे हैं. Clever. Elephant is a clever animal. Tusks. These are two tusks. जो इसके बड़े बड़े ये दांत हैं दो. Okay. These are called tusks. And fans. ओके इसके जो ईयर्स होते हैं वो जस्ट दे आर जस्ट लाइक द फैंस, फैन की तरह काम करते हैं. ओके सो दिस इज ऑन पेज 26 बेटा. नाउ दीज हेल्प बॉक्स और दीज वर्ड्स यू हैव टू सप्लाई इन द फिलअप्स. सो वी हैव आई टोल्ड यू देयर मीनिंग. नाउ लेट अस डू द fill-ups, and these fill-ups are on the next page. Okay, so let us start. A, an elephant is a dash animal. Elephant जो है वो कैसा animal है? See from the help box. Elephant is a, see बहुत बड़ा है ना, तो what will come? big, big. So you will fill big here from the help. An elephant is a big animal. Now let us move to the second bit, B bit. It has a long dash. It has a long trunk. Okay, जो इसकी ये होती है, ये बहुत long होती है ना. This is called trunk. So it has a long trunk. C, it has two dash. It has, I told कि इसके two tusks होते हैं. These are the tusks. ये. Okay, so it has two tusks. You will write the spelling from the help box, my dear students. D, its ears are like big dash. I told you that जो इसके ears होते हैं, they work as a fan. ये fan के जैसे काम करते हैं. Yes. So its ears are like big fan. बड़े पंखे की तरह fan के जैसे ये work करते हैं बेटा. E, it loves to eat dash. I told you it loves to eat, yes, bananas. उसको bananas बहुत अच्छे लगते हैं elephant को. Okay, so you will fill bananas here. Now F, elephants are very dash animals. Elephants are very, elephants कैसे animal होते हैं? I told you कि they are very clever animals. वो बहुत intelligent जो है animals होते हैं. Like human being we can say clever, clever. So elephants are very clever animals. Now let us do the question answer of the same chapter. Answer the following questions. These are the 4 questions given to you. You have to read. आपको read करना है, इसको understand करके then you have to give the reply. अगर आपने लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, देन इट बिकम वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस बेटा. ओके सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द ए क्वेश्चन. वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग? जो बच्चे थे वो कहाँ प्ले कर रहे थे? एवरीबडी नोज, यस, पार्क में. वेरी गुड. सो हाउ यू विल राइट द आंसर? आंसर, द चिल्ड्रन आर, यू विल राइट फ्रॉम द क्वेश्चन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग. यहाँ तक आप क्वेश्चन से ही कॉपी करेंगे. देन यू विल राइट इन द पार्क. जो चिल्ड्रन थे वो कहाँ प्ले कर रहे थे? सॉरी, प्ले कर रहे हैं. आर इज देयर ना. वे चिल्ड्रन कहाँ प्ले कर रहे हैं? इन द पार्क, पार्क में. इजी. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग. देन यू विल ऐड इन द पार्क. IN, in THE, the PAR, ये पार्क. देन एट द एंड बेटा you will put the full stop. आंसर के लास्ट में जो है एंड में हम हमेशा फुल स्टॉप पुट करते हैं. ओके. B, how is the park? How means कैसा? पार्क कैसा था? पार्क कैसा था? बहुत ही ब्यूटीफुल.
So the park, you will write from the question, the park is, ये आप यहाँ से लिखेंगे, the park is, then you will write very beautiful, V-E-R-Y, very, B-E-A-U-T-I, beauty, F-U-L, full. You can break the spelling, it become easy for you to learn and to read. Okay? The park is very beautiful. जो पार्क है वो बहुत ही लवली था, बहुत सुंदर था. सुंदर है, था नहीं, is there ना? It is in present. See, what is there at the entrance of the park? Entrance means जैसे ही हम एंटर करते हैं गेट पे पार्क के, वी कैन से, तो पार्क के एंट्रेंस पे क्या था, क्या है पार्क के एंट्रेंस पे? फाउंटेन बोला, बताया था ना मैंने आपको. सो देयर इज अ, यू विल राइट हियर, देयर इज अ, यू विल ऐड देन फाउंटेन एट द एंट्रेंस, you will write up to here. There is a, और इसको लर्न करेंगे फाउंटेन, FOUNTAIN, फाउंटेन मीन्स फवारा, ओके, जिसमें से वाटर निकलता है, जो शो के लिए लगाया जाता है बेसिकली. सो देयर इज अ फाउंटेन एट द एंट्रेंस. फाउंटेन स्पेलिंग यू हैव टू लर्न, अदरवाइज यू विल राइट द सेम फ्रॉम द फाउंटेन, यू हैव टू लर्न. उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे एट द एंट्रेंस ऑफ द पार्क, फुल ऑल्सो यू कैन राइट. ओके, इट्स योर विश. D1, who keep on visiting flowers to drink nectar? Who means कौन, visit means आता है, किसके ऊपर? फ्लावर्स के ऊपर. क्या करने के लिए? ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए. नेक्टर मीन्स शहद, जो लिक्विड मीठा मीठा होता है फूलों में, उसको पीने के लिए कौन आता है? कौन आता था फ्लावर्स पे? कलरफुल बटरफ्लाइज मीन्स रंग बिरंगी तितलियां. सो कलरफुल, COLOUR, कलर यू विल राइट FUL, फुल. आप इसको ऐसे लर्न करेंगे, कलरफुल बटरफ्लाइज, BUTTER, बटर, बटर को याद कर लर्न करेंगे स्पेलिंग को. देन FLIES, फ्लाइज. अगर आप ब्रेक करके लर्न करोगे तो रीडिंग में भी आपको इजी होगा, लर्निंग में भी आपको इजी होगा. ओके, सो कलरफुल बटरफ्लाइज. And then you will write from the question, keep on visiting flowers to drink nectar. It's very easy. So the answer is colorful butterflies keep on visiting flowers to drink nectar. So these are the 4 questions. These are very easy. So you have to learn them. Okay. In the same way I told you. जैसे मैंने आपको learning के लिए बताया बेटा, same way you have to learn. If you will learn like this, it become very easy for you. Okay. Now let us do the second question. Say if the following sentences are true or false. Okay. These are the 4 sentences given to you. आपको 4 sentence given है. आपको क्या करना है? First you have to read them, understand, reading करनी है, इनको समझना है. Then you have to state whether the sentences are true or false. वो correct हैं या incorrect हैं. अकॉर्डिंग टू द चैप्टर यू हैव टू गिव द रिप्लाई. आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग ही इसको ट्रू फॉल्स करना है. ओके. ए, अ पार्क इज मेंट फॉर द चिल्ड्रन. जो पार्क होता है बेटा, मेंट मीन्स वो सिर्फ बच्चों के लिए ही होता है, ओनली फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए होता है? नो, वो तो सभी के लिए होता है. यस, उसमें जो है सभी एज ग्रुप आते हैं, ओल्ड पर्सन्स भी आते हैं, यंग मैन वुमेन भी आते हैं, यस, चिल्ड्रन भी आते हैं. सो इट इज फॉर एवरी एज ग्रुप, है ना. सो दिस इज फॉल्स, ये रॉन्ग है. FALSE, फॉल्स यू विल राइट. नाउ लेट अस मूव टू द B bit बेटा. देयर आर बेंचेस एट डिफरेंट कॉर्नर्स इन द पार्क. इट मीन्स जो डिफरेंट अलग अलग कॉर्नर्स हैं पार्क के, वहाँ बेंचेस हैं. आई टोल्ड यू कि बेंचेस कहाँ लगे हुए हैं? पार्क के कॉर्नर्स में. सो दिस इज ट्रू, TRUE, ट्रू. सी, सम यंग मैन टेक अ ब्रिस्क वॉक अराउंड द पार्क. ओके, इट मीन्स जो थोड़े यंग मैन है, यंग मीन्स जवान है, ओके, वो क्या ले रहे हैं? ब्रिस्क वॉक. ब्रिस्क मीन्स
जल्दी जल्दी चलना, क्विक वॉक। हम जो है घूमने जाते हैं, जब हम फास्ट वॉक करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड ब्रिस्क वॉक। तो पार्क के चारों ओर जो यंग मैन हैं वो क्विकली वॉक कर रहे हैं, जल्दी जल्दी वॉक करके चल रहे हैं। यस, सो दिस इज ट्रू, TRUE, ट्रू। D1, people sit and enjoy the cool shade of the trees. It means जो people sit, वहाँ पे लोग बैठते हैं, enjoy करते हैं। कूल शेड मतलब ठंडी ठंडी हवा ट्रीज की करते हैं ना, पार्क में बेंचेस होते हैं, उस पर पर्सन बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं और जो है ठंडी ठंडी हवा ट्रीज की इंजॉय करते हैं। सो दिस इज ट्रू, सो यू विल राइट TRUE, ट्रू। नाउ थर्ड वन इज देयर बेटा, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। ओके, here no help box is there. What you have to do, you have to supply the correct word from the chapter के according। यहाँ पे कौन सा word आना चाहिए, that you have to write। So let us read the first sentence first। The children come to play in the park in the dash। जो children हैं वो आते हैं play करने के लिए, किस में, पार्क में। in the dash किस में आते हैं, कब आते हैं, मॉर्निंग में आते हैं, आफ्टरनून में आते हैं, और इन द इवनिंग। यस, वो इवनिंग में आते हैं ना। सो व्हाट विल कम बेटा, इवनिंग, शाम को, EVENING, इवनिंग। द चिल्ड्रन कम टू प्ले इन द पार्क इन द इवनिंग, EVENING, इवनिंग। नाउ बी, a park is a place of dash for all। a park जो है वो एक प्लेस है, वो किस लिए है, रिक्रिएशन के लिए, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, एंजॉय करने के लिए है। सो यू विल राइट रिक्रिएशन, REDCREATION, क्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स रिफ्रेश करने के लिए अपने आप को हम पार्क में आते हैं ना, वो सभी के लिए रिक्रिएशन का सोर्स है, रिफ्रेशमेंट का सोर्स है, इंजॉयमेंट का सोर्स है, प्लेजर का सोर्स है, यू कैन से। हमें खुशी मिलती है उसको करके, वहाँ आके। सी, सम बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो राइड द डैश डैश एंड मैरी गो राउंड। सम मीन्स कुछ बॉयज और गर्ल्स जो है बेटा वो राइड लेते हैं, किस पे राइड लेते हैं, स्विंग्स पे लेते हैं, सी सॉ पे, फिर स्विंग्स पे और मैरी गो राउंड। ये सभी स्विंग्स मैंने आपको दिखाया था अपने वीडियो में। यस, सो ये सबको क्लियर है। सो यू विल राइट सी सॉ, SEEC-SAW, सॉ, सी सॉ। स्विंग, SWING, स्विंग, एंड मैरी गोल्ड इज गिवन। सो सम बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो राइड द सी सॉ, swing and merry-go-round. Easy? Let us move to the next D. Soon the evening changes into। जल्दी ही जो है, soon means जल्द ही, जो evening होती है वो किस में बदल जाती है, जब अंधेरा हो जाता है, होने लगता है। yes, dusk में, DUSK, dusk। आपको मैंने वीडियो में dusk दिखाया भी था, मीनिंग भी बताया था। so it is clear ना, everybody understood now what is the meaning of dusk। so soon the evening changes into dusk। now let us move to the next page। okay, fourth page is there, fourth question is there on next page। put a tick on the correct option to complete the sentences। here 4 sentences are given। You have to complete these sentences and in every bit बेटा कितने कितने ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, 4 ऑप्शन। तो आपको you have to choose the correct option। आपको करेक्ट ऑप्शन के आगे जो है टिक मार्क करना है। Let us read the A। There is a park in every। पार्क में जो है every, there is a park in every। पार्क कहाँ पे होता है, हर सोसाइटी में होता है, हाउस में होता है या नेबरहुड में होता है, हर के नेबरहुड में होता है ना। सो नेबरहुड इज द करेक्ट आंसर।
नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस में। बी, सम बॉयज एंड गर्ल्स राइड ऑन इट इन द पार्क। कुछ बॉयज़ और गर्ल्स हैं, वो उस पर क्या करते हैं, राइड लेते हैं पार्क में। कार पे राइड लेते हैं हम लोग, एलिफेंट पे लेते हैं पार्क में, नो। साइकिल पे राइड लेते हैं हम, बेसिकली राइड किस पे लेते हैं बेटा, स्विंग्स पे। सो स्विंग विल कम, SWING, स्विंग। राइड जो है वो स्विंग की लेते हैं हम पार्क में स्पेशली। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, स्विंग। सो यू विल पुट द टिक मार्क। सी, few young men do it in the park। इट मीन्स कुछ यंग मैन जो होते हैं, जो जवान होते हैं, है ना, आपके फादर या मदर के एज के लेवल ग्रुप के होते हैं। सो फ्यू यंग मैन डू इट इन द पार्क। पार्क में क्या करते हैं, वो स्लीप करते हैं, सोते हैं, नो। जॉगिंग करते हैं, नो। रन करते हैं या रेस्ट करते हैं, रन। व्हाट विल कम, रन, है ना, वो रनिंग करते हैं। डी, बटरफ्लाइज विजिट फ्लावर्स टू ड्रिंक। जो बटरफ्लाई हैं विजिट करती हैं, आती हैं किसके ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर। क्या ड्रिंक करने के लिए आती हैं, फ्रूट्स ड्रिंक करने के लिए आती हैं, हनी ड्रिंक करने के लिए आती हैं, लीव्स और नेक्टर। वो हनी भी नहीं होता है उनके लिए, वो बेसिकली वो लिक्विड जो होता है मीठा मीठा, डेट इज कॉल्ड नेक्टर। उसको नेक्टर बोला जाता है बेटा, जो फ्लावर्स में होता है, जो बटरफ्लाई सक करती हैं, उसको चूसती हैं, उसको पीती हैं। सो NECTAR, नेक्टर। So nectar is the correct answer. Okay.